Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, today I am going to start a new chapter and the name of the chapter is Life in the Desert. So especially we will read about two deserts of the world. One is cold desert and one is hot desert. So please open your book, chapter number 12, and the chapter is Life in the Deserts. So dear students, now we are going to start a new chapter, chapter number 12, and the chapter is Life in the Deserts. The deserts are barren lands. है ना, desert ऐसे lands हैं which are barren lands. We cannot grow anything there. So they are characterized by extreme temperatures, less than 25 centimeter of annual rainfall and scanty vegetation. देखो, all the deserts, whether they are cold desert, whether they are hot desert, they are characterized by extreme temperature. And you know, their annual rainfall is very less. So it is less than 25 centimeter of annual rainfall and vegetation is scanty, very less vegetation. Clear? So the deserts are barren lands. They are characterized by extreme temperatures, annual rainfall less than 25 centimeter and vegetation is scanty. So there are two types of deserts. One is the hot deserts in the tropical areas and another one is the cold deserts in the temperate and polar areas. We have two types of deserts. दो तरह के deserts हैं. एक तो hot deserts जो कि tropical areas में है and the cold deserts जो कि temperate and polar areas में है. So first we will discuss about a hot desert, and we have taken example of Sahara Desert. Sahara Desert, it is a hot desert, and we will discuss about this. So, the hot deserts lie between 20 degree and 30 degree latitudes, north and south of the equator. ये जो hot deserts है ना, ये 20 डिग्री से 30 डिग्री latitudes के बीच में है. चाहे वो इक्वेटर के नॉर्थ में हो, चाहे वो इक्वेटर के साउथ में हो. The hot deserts are found in almost all the continents. ये जो hot deserts है ना, वो सारे continents में पाए जाते हैं, except यूरोप and अंटार्कटिका. यूरोप और अंटार्कटिका को छोड़कर जितने भी continents हैं, सब जगह hot deserts पाए जाते हैं. ठीक है? तो फिर से सुनो, the hot deserts lie between 20 degree and 30 degree latitudes to the north of the equator and south of the equator. Hot deserts are found everywhere in all the continents except Europe and Antarctica. These deserts are located on the western margins of the continents. ये जो deserts है ना, ये किसी भी continent के western margins पे located है. And the main hot deserts in the world are Sahara, Kalahari, Arabian, Great Australian, Atacama, the Thar and the Mexican desert. These are the examples of hot deserts in the world. I am repeating it one more time. So the main hot deserts in the world are Sahara, Kalahari, Arabian, Great Australian, Atacama, the Thar and the Mexican desert. ठीक है, आपको ये याद रखना है. Then now I am going to show you the location of Sahara Desert. Look, this is Africa continent and this portion, जो yellow portion आप देख रहे हो ना, This is the Sahara Desert. ठीक है, अगर आपको मैप में आए तो you can show it or you can identify
कहां पर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देखिए ये है, दिस इज द सहारा डेजर्ट। क्लियर? प्लीज सी इट केयरफुली। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सहारा डेजर्ट इन वर्ल्ड मैप? This one, this portion, yellow portion is the Sahara Desert. Okay? The Sahara is the largest desert in the world. दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। It covers a large part of North Africa. आपने देखा ना कि अफ्रीका के नॉर्थ में है। So it covers a large part of North Africa. It extends from the Atlantic Ocean in the west up to the Red Sea in the east. कहां से कहां तक फैला है? तो वेस्ट में अटलांटिक ओशन से लेकर ईस्ट में रेड सी तक it extends. It covers an area of about 8.5 million square kilometer. Just imagine कितना बड़ा ये डेजर्ट है। It covers an area of about 8.5 million square kilometer. Its east-west extent is about 5,500 kilometer and north-south extent is about 1,900 kilometer. इसका जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है वो 5,500 किलोमीटर और नॉर्थ-साउथ एक्सटेंट 1,900 किलोमीटर। The northwest of the Sahara lies the Atlas Mountains. सहारा का जो नॉर्थ वेस्ट है वो एटलस माउंटेन्स में लाई करता है। टुवर्ड्स द साउथ द डेजर्ट मर्जेस इनटू द सवाना ग्रासलैंड। साउथ की तरफ ये डेजर्ट कहां तक फैला है, कहां तक मिलता है? इट इज मर्जेस इनटू द सवाना ग्रासलैंड्स। एंड यू नो द सहारा इज स्प्रेड अक्रॉस 11 कंट्रीज डियर स्टूडेंट्स। 11 कंट्रीज में फैला हुआ है ये डेजर्ट। And the name of the countries are Morocco, Algeria, Libya, Egypt, Tunisia, Sudan, Chad, Mali, Mauritania, Niger, and West Sahara. These are the 11 countries where Sahara is spread. तो सहारा जो है इन 11 countries में फैला हुआ है। सैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए हॉट डेजर्ट। देखिए कोई भी हॉट डेजर्ट हो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो सैंड होता है। सो सैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए हॉट डेजर्ट, येट ओनली 1/4 ऑफ द सहारा इज अंडर सैंड। लेकिन ये बात भी जानना है कि सहारा का केवल 1/4 एरिया जो है दैट इज अंडर सैंड। इट इज अ फ्लैट वाटरलेस वेस्टलैंड। ये एक फ्लैट लैंड है, वाटरलेस लैंड है। And that's why the Sahara is also known as Al-Khela, जिसका मतलब emptiness, बिल्कुल खाली है ना। तो Sahara is also known as Al-Khela, which means emptiness. The Sahara has not always been a wasteland. देखो सहारा हमेशा से ऐसा वेस्टलैंड नहीं था। एक समय it was a fertile land with thick forests. यहां का लैंड बहुत फर्टाइल था। यहां पे जो फॉरेस्ट थे वो बहुत थिक थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये डेजर्ट बन गया। सो ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कन्वर्टेड दिस रीजन इनटू अ बैरन वेस्टलैंड। हजारों साल में क्या हुआ? एक तो नेचर के फोर्सेस की वजह से एंड बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, इन दोनों चीजों ने क्या किया? इस रीजन को कन्वर्ट कर दिया बैरन वेस्टलैंड में। अदरवाइज सहारा एक समय बहुत फर्टाइल लैंड था, वहां पे थिक फॉरेस्ट्स थे, बट ड्यू टू फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज दीज हैव कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। द सरफेस ऑफ दिस डेजर्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। इस डेजर्ट का जो सरफेस है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट हैज हाईलैंड्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड बेसिन, सब कुछ है यहाँ पर। हाईलैंड्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, बेसिन्स भी हैं।
Mount Emi Kosi in Tibesti Range is the highest point. सहारा का जो हाईएस्ट पॉइंट है that is Mount Emi Kosi, जो कि तिबेस्ती रेंज में है, about 3415 मीटर. Some parts have bare rocky surfaces. कुछ ऐसे parts है ना जो bare rocky surfaces हैं, and which rise to more than 2500 मीटर, जो कि 2500 मीटर तक हाइट में है. Lake Chad on the southern border of Sahara is the only freshwater lake in this region. ये नाम आपको याद रखना होगा, that is Lake Chad. ये सदर्न बॉर्डर पे है सहारा का. ये दिस इज द ओनली फ्रेश वाटर लेक इन दिस रीजन. द नाइल एंड द नाइजर रिवर्स फ्लो अलोंग द फ्रिंजेस ऑफ दिस डेजर्ट. इस डेजर्ट के फ्रिंजेस में नाइल और नाइजर फ्लो करते हैं. द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सहारा हैज ओनली वादीज विच वर वंस इंपॉर्टेंट रिवर्स. जो बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस है सहारा का, जो फैला हुआ सहारा, उसमें बहुत सारे वादीज है केवल, और ये वही वादीज हैं जो एक समय इंपॉर्टेंट रिवर्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो सूख गए हैं, वो वादीज हो गए हैं. एंड दीज वादीज गेट फ्लडेड बाय सडन डाउनपोर्स. सडन कोई बरसात हुआ, डाउनपोर्स हुआ, तभी ये फ्लडेड होते हैं, अदरवाइज ये सूखे रहते हैं. एंड द अंडरग्राउंड वाटर इन सहारा इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओएसिस. जहां पर ओएसिस है वहीं से अंडरग्राउंड वाटर ऑब्टेन होता है सहारा के लिए. क्लियर? Now the climatic conditions. Now we will discuss about the climatic conditions of Sahara. So the climate is very hot and extremely dry. ये जो climate है ना वहां का definitely बहुत hot है और बहुत dry है. और you know सहारा में वर्ल्ड का highest temperatures भी रिकॉर्ड किए गए हैं. Some of the highest temperatures of the world have been recorded here. अल अजीजिया इज अ प्लेस इन लीबिया, जहां पर एक बार 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. जस्ट इमेजिन कितना हॉट है ये. अल अजीजिया इन लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922. 1922 में वहां का टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जस्ट इमेजिन. In Sahara, temperature rises and humidity decreases from north to south. अगर आप सहारा में हैं और अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती चली जाएगी. और जो ड्राइनेस है ना एयर का, इट कीप्स स्काई क्लाउडलेस और क्लियर. जो ड्राइनेस है एयर का ना, वो स्काई को क्लाउडलेस रखता है और क्लियर रखता है, इसलिए वहां पे रेन नहीं होता. अंडर क्लियर स्काईज द टेम्परेचर कैन रेंज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑन ए विंटर नाइट टू मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस ऑन ए समर आफ्टरनून. टेम्परेचर का रेंज कितना है सहारा का? ये विंटर में फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि समर में आफ्टरनून में ये 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. लुक द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर देयर. The amount of rainfall varies greatly from region to region and from year to year. ये जो amount है ना rainfall का, वो बहुत region to region and year to year बहुत vary करता है. In some areas there has been no rainfall for many years. और वहां तो कुछ areas तो ऐसे हैं जहां सालों से कोई rainfall नहीं हुआ. Now we will discuss about flora and fauna. Flora and fauna. So the climatic condition is not suitable for the growth of plants. वहां का जो climatic condition है ना, वो plants के growth के लिए suitable नहीं है. ये अलग बात है कि वहां पे कुछ इस तरह के plants होते हैं जिनके roots long होते हैं, waxy and leathery leaves होते हैं, वो वहां पे grow कर सकते हैं. तो ऐसे plants हैं like cactus, acacia, baobab and date palm. ये वहां पे ग्रो करते हैं. और ये जो डेट पाम है, दे ग्रो नियर द ओएसिस, वो ओएसिस के पास ग्रो करते हैं. और एनिमल्स की बात करें तो कैमल्स, हाइनास, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, दीज एनिमल्स आर फाउंड देयर. क्लियर?
Then now we will discuss about people and their economic activities. वहां के लोगों के बारे में और वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में. So life in deserts is difficult. आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट में लाइफ कितनी मुश्किल है. The Bedouins and Tuaregs, these are the two important nomadic tribes. Bedouins and Tuaregs जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोमैडिक ट्राइब्स हैं सहारा के. क्या करते हैं वो? They rear sheep, goats and camels. वो sheep, goats and camels को rear करते हैं और ये animals, the animals provide meat, milk and hides. ये animals उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? Meat, milk and hides. The hair of animals is used to make clothes. एनिमल्स के हेयर से क्लोथ्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, मैट्स और ब्लैंकेट्स भी बनते हैं. The tribes of this region live in temporary tents. ये जो ट्राइब्स है ना, ये टेम्पररी टेंट्स में रहते हैं. वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं वाटर एंड पास्चर की सर्च में. उनका जो ड्रेस है दैट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स. उनका जो ड्रेस है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे वो हॉट विंड से बच सके और डस्ट स्टॉर्म से बच सके. वहां बहुत कॉमन है ये. नियर द ओएसिस, देखो ओएसिस के आसपास पीपल आर कल्टिवेटर्स एंड हर्ड्समैन. वहां पे लोग क्या है? वो कल्टिवेटर्स हैं एंड हर्ड्समैन हैं. दे लीड सेटल्ड लाइफ. वहां पे जो लोग रहते हैं वहां पे सेटल्ड रहते हैं, वहां पे परमानेंट रहते हैं. दे ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, maize, barley, cotton, etc. These are the crops which are grown by the people of Sahara who live near oases. Then agriculture, local trading and herding have become the basis of the economy. Agriculture, local trading और herding वो वहां के इकोनॉमी का बेसिस है. कैमल सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है एंड इट इज यूज्ड एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन. बर्डन को लोड अपलोड करने के लिए इनको यूज करते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड मीट, मिल्क एंड फर स्किन. ये मीट भी प्रोवाइड करता है, मिल्क और फर स्किन भी प्रोवाइड करता है. रिसेंटली मिनरल ऑयल हैज बीन डिस्कवर्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट. अब वहां पे लाइक अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में मिनरल ऑयल भी मिलने लगे हैं. दोज आर डिस्कवर्ड. दिस हैज चेंज द फेस ऑफ द इकोनॉमी. और इसने क्या किया? वहां के इकोनॉमी का फेस चेंज कर दिया. दूसरे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं लाइक नेचुरल गैस, आयरन ओर, कॉपर एंड मैग्नीज, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन. The life of the people of Sahara is undergoing changes. देखो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सिटीज डेवलप हो गए यहाँ पर, है ना. उसके बाद जो सिटीज हैं सारे मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, प्रॉपर रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है. और सहारा का ऐसा बहुत सारा पार्ट्स जो पहले जहां पे जाया नहीं जा सकता था, नाउ दे आर असेसिबल बाय एरोप्लेन. अब एयर रूट बन चुके हैं और वहां पर एक ट्रांस सहारा रेल रोड भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है. ठीक है ना. तो बहुत तेजी से सहारा का जो पूरा सिस्टम है वो बदल रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट a hot desert, Sahara. In next class we will discuss about a cold desert, that is Ladakh. So please read all the topics. We will meet in next class. Till then, thank you and have a nice day.